Hi dear students, my name is Abhay Kakade. In last lecture, we had learned idioms, and today we are going to learn comprehension of unseen passage. Learning outcomes. After watching this video, students will be able to summarize the comprehension passages. Answer the given questions of the specified passage. Formulate sentences using the given new words. Use correct syntax to construct meaningful sentences for the given situation. Pronounce the words correctly in the given passage. Answer the questions orally on the given unseen passage with correct pronunciation. Introduction. Comprehension is an important skill. It requires careful reading, proper understanding of the material, and the ability to reproduce it precisely. There are some main points to be remembered as: read the passage carefully. Try to get the main theme and main points. You may across some difficult words. Try to guess the meaning of words on the basis of the context. Read all questions carefully. Read the passage again and find answers. आंसर द क्वेश्चंस इन योर लैंग्वेज. तो सबसे पहले आपको पैसेज अच्छे से पढ़ना है. उसके बाद क्या करना है, उसका मेन आइडिया थीम क्या है ये समझ लेना है. फिर उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग पता करना है और सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हम उसके अच्छे से आंसर दे पाएंगे. अगर हमको क्वेश्चन नहीं समझा तो हम आंसर नहीं लिख पाएंगे. तो ये मेथड आपको फॉलो करना है अनसीन पैसेज सॉल्व करते वक्त. तो देखते हैं अनसीन पैसेज. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. Our forests are important source of natural wealth, covering 1/5 of the country's land area. They supply the timber for the railways, house building, and furniture making. They also supply the fuel for cooking and bamboo for paper making. Medicinal herbs also come from the forest. In the olden days, our wise men and philosophers had their ashrams in the forests. These ashrams were centers of knowledge and learning. Unfortunately, forests were ruthlessly cut down in the past few years. While the forests are disappearing, the demand for timber is growing. We must therefore protect and develop our forests. One Mahotsav is a most important step in this direction. It is observed for a week in July every year. During this week, lakhs of saplings are planted throughout the country. This is being done to restore our fast disappearing forests. तो अब हम इसका मीनिंग देखेंगे. हमारे फॉरेस्ट कंट्री के 5वें भूभाग को कवर करने वाला नेचुरल वेल्थ के इम्पोर्टेंट सोर्स है. वे रेलवे, हाउस बिल्डिंग और फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं. Bamboo, paper making
और कुकिंग और फ्यूल के लिए भी यूज़ होता है। औषधीय जड़ी बूटियाँ भी जंगल से आती है। पुराने दिनों में फिलोसोफर्स और वाइज मैन यानी तत्वज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति के फॉरेस्ट में आश्रम थे। वे आश्रम नॉलेज के सेंटर्स थे। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ ईयर्स में फॉरेस्ट को काट दिया गया, जबकि फॉरेस्ट गायब हो रहे हैं और लकड़ी की डिमांड बढ़ रही है। इसलिए हमें प्रोटेक्ट और डेवलप करना चाहिए फॉरेस्ट को। वन महोत्सव का इसके दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह हर साल जुलाई में एक वीक के लिए मनाया जाता है। इस वीक में दुनिया भर में लाखों प्लांट लगाए जाते हैं। इसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट बढ़ने में मदद होगी। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। फॉर व्हाट पर्पज डू वी नीड टिम्बर? हमें टिम्बर यानी लकड़ी की ज़रूरत किस लिए होती है? अब इसका आंसर है वी नीड टिम्बर फॉर द रेलवेज, हाउस बिल्डिंग एंड फर्नीचर मेकिंग। नेक्स्ट, व्हाट डू फॉरेस्ट सप्लाई फॉर पेपर मेकिंग? पेपर बनाने के लिए हमें फॉरेस्ट की ज़रूरत क्यों है? अब इसका आंसर आएगा फॉरेस्ट सप्लाई बाम्बू फॉर पेपर मेकिंग। व्हाट वॉज द पर्पज ऑफ आश्रम्स? आश्रम्स का पर्पज क्या था? These ashrams were centers of knowledge and learning for the wise men and philosophers. Why is Van Mahotsav observed? How is it observed? वन महोत्सव कैसे ऑब्जर्व किया जाता है और कैसे मनाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा वन महोत्सव इज ऑब्जर्व टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप आवर फॉरेस्ट्स. During this week, lakhs of saplings are planted throughout the country. This is done to restore our forests. Our forests are disappearing fast. Do you agree? What would you do to restore forests? हमारे फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं। क्या आप इससे सहमत हैं और इसे बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर आ सकता है I do agree that our forests are disappearing fast. To protect our forest wealth, I will plant more trees and ask others also to do the same. तो इस तरह से आपको पैसेज अच्छे से पढ़ना है, उसके क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ही आपको उसके आंसर लिखना है। Summary. Through this topic, we have learned, we came across about the unfamiliar content of the passage. We could reproduce the content of the passage in our own words in question answer form. We could construct grammatically correct sentence structures. तो इसके बाद ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमें पैसेज को कैसे पढ़ा जाता है और उसका मीनिंग कैसे ढूंढना है ये हमें पता चलता है, और पैसेज पढ़ने के बाद उसके आंसर्स कैसे लिखना है ये भी आज का टॉपिक पढ़ने के बाद हमें समझ गया है। प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। अब इसके पहले के सारे वीडियो में हमने प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड देखे हैं, लेकिन इसके पहले के सारे वीडियोस में हमने 10 पीओ देखे थे, लेकिन अब वो चेंज होकर 7 पीओ हुए हैं। तो इसमें जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किए हैं यानी फर्स्ट और 7th पीओ अचीव होते हैं आज का टॉपिक पढ़ने के बाद, जिससे हमारा बेसिक नॉलेज डेवलप होता है और यह हमें लाइफ टाइम काम में आने वाला है। असाइनमेंट. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. आज का असाइनमेंट कंप्लीट करते समय पैसेज अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न यूनिट नंबर 2 comprehension.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।